اچھی قیام گاہ ہے جس میں اہل جنت قیام کریں گے اور اس چیز میں لطف اندوز ہوں گے جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ ان کی جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ان کی خوشیوں کو کبھی غم نہیں ڈسے گا، ان کی لذتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گے، ان کے گھر بہترین آرام گاہ ہوں گے۔ ان میں سب سے ادنا درجے والا جنتی اپنی نعمتوں میں، اپنے باغوں میں، محلات میں 2000 سال چلے پھرے گا۔ وہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں پائے گا، اس کی آرزویں پوری ہوں گی۔ ان نعمتوں کا دوام ان کے حسن میں اضافے کا باعث ہوگا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس احسان سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ جگہ یا ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک لے تو زمین و آسمان کا درمیان روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی 2796 نمبر روایت ہے۔ سیدنا برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ یہ بخاری کی 3249 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی کہ تم صحت مند رہو اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے اور تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، آواز آئے گی کہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس کے وارث ہوئے۔ یہ مسلم کے 7157 نمبر روایت ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ الکہف میں دیکھا کہ عقیدے کی وجہ سے کس طرح سے اصحاب کہف پر آزمائش آئی اور وہ کیسے آزمائش میں پورے اترے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اجر بھی لے لیا، محفوظ بھی رہ گئے، دنیا والوں کے لیے مثال بھی بن گئے۔ یا اللہ، ہمیں سبق حاصل کرنے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 17 ہے، ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان بنائی۔ یہ دوسری ٹرائل کا تذکرہ ہے، دوسرا واقعہ ہے مال کی آزمائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 آدمیوں کی مثال دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ یہ وہ 2 آدمی ہیں جو جانتے نہیں کہ آزمائش ہونے والی ہے، لیکن ان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ باغ والے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے 2 افراد تھے، یا اہل مکہ میں سے ایک مومن اور دوسرا کافر۔ جعلنا لأحدہما جنتین
من आनाब वहफ़फ़नाहुमा बिनख़ल वजअलना बैनहुमा ज़रा। उन दोनों में से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उन दोनों को हमने खजूर के दरख्तों से घेर दिया और हमने उन दोनों के दरमियान खेतियां बनाई। खजूर का फल बहुत ऊपर जाकर लगता है, अंगूर की बेल छज्जों पर चढ़ाई जाती है, इसलिए बाग का मंजर कुछ ऐसा था कि खजूर के दरख्तों के बीच में अंगूरों की बेलों के छज्जे थे, यानी एक ही बाग में 2 तरह के फल थे। इन दरख्तों के दरमियान खेतियां भी थीं। इस तरह 3 फसलें एक ही ज़मीन पर थीं। अल्लाह ताला ने ये किस्सा इसलिए सुनाया है ताकि इस्लामी अक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़ और नॉन बिलीवर्स की वैल्यूज़ को वाज़े किया जा सके। इस किस्से का मकसद ये वाज़े करना भी है कि दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में आखिरत की क्या हकीकत है। आयत नंबर 33 है, किल्तल जन्नतैनी आतत उकूलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैयम वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। दोनों बाग अपना पूरा फल लाए और उसमें कोई कमी न की, और हमने दोनों बागों के दरमियान एक नहर जारी कर दी थी। 2 बाग, दोनों का फल और फसलें कई गुना थीं। उनके दरमियान पानी से भरे हुए दरिया बह रहे थे। किल्तल जन्नतैनी आतत उकूलहा, दोनों बाग अपना पूरा फल लाए, यानी उनका फल और फसलें कई गुना थीं। वलम तज़लिम मिन्हु शैया, उसमें कोई कमी न की। यहाँ जुल्म का लफ्ज़ नक्स और कमी के लिए लाया गया है। अल्लाह ताला ने बाग के हवाले से ये वाज़े किया है कि उन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया, जबकि बाग के मालिक ने तकब्बुर किया, सरकशी की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा न किया और जुल्म किया। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने दोनों बागों के दरमियान एक नहर जारी कर दी थी। इन बागों के साथ पानी से भरे हुए दरिया बह रहे थे और इन बागों के दरमियान जगह जगह दरिया जारी थे। क्या खूबसूरत मंजर है, कितना हसीन बाग है। हमारे यहाँ अमूमन ऐसे बागात नहीं होते क्योंकि इस इलाके में खजूर नहीं है। खजूर और अंगूर का मुआवजा करें तो दोनों कितने मुख्तलिफ किस्म के फल हैं। अंगूर इतना नाजुक है, हाथ भी लगाओ तो उसके आंसू बह निकले, कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है, और खजूर कई महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। वकान लहू समरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। और उसका फल बहुत हुआ तो उसने अपने साथी से कहा, और वो उससे बातें कर रहा था, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तादाद में ज़्यादा बाइज़्ज़त हूँ। ये आयत नंबर 34 है। माल की वजह से कैसे तकब्बुर आ जाता है, आयत से वाज़े हो रहा है। वकान लहू समरुन, अल्लाह पाक ने क्या दिया, फल दिए ना, उसका फल बहुत हुआ। उस शख्स का बाग फलों से पक गया। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु, उसने अपने साथी से कहा, वो उससे बातें कर रहा था, यानी अपने ईमान वाले दोस्त से फ़खरिया कहा, जबकि वो रोज़मर्रा आम बातचीत कर रहे थे। अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तादाद में ज़्यादा बाइज़्ज़त हूँ। यहाँ से पता चलता है माल की बुनियाद पर तकब्बुर कैसे आता है। बंदा समझता है अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मेरे पास माल ज़्यादा, मेरे मुलाजिम, मेरे खिदमतगार ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि बाग में फिरते हुए उस आदमी के दिल का पैमाना खुशी से भर गया, वो जोश में आ गया, हत्ता कि गुरूर उसके दिल में दाखिल हो गया। अब वो भूल गया कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। सिर्फ ये याद है कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार और ताकतवर नफरी रखता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरफी का बंदा
रुपए का बंदा, चादर का बंदा, कंबल का बंदा हलाक हुआ। अगर उसे कुछ दे दिया जाए खुश हो जाता है, और अगर उन्हें ना दिया जाए नाराज़ हो जाता है। यानी दुनिया का माल जब मिले तो उस माल का बंदा नहीं बन जाना चाहिए, माल का गुलाम नहीं बन जाना चाहिए कि माल में इज्जत तलाश करें, माल की वजह से लोगों से ताल्लुकात बनाएं, माल की वजह से अपने आप को बेहतर ख्याल करें। माल तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। माल दुनिया की ज़िंदगी के लिए मिला, अपनी ज़रूरियात के लिए भी खर्च करें, दीन के हिफाजत के काम भी करें, नादार लोगों पर भी खर्च करें। माल तो अल्लाह की दी हुई नेमत है। दुनिया में कुछ लोगों को अल्लाह ताला ज़्यादा माल देता है ताकि उनके तवस्सुत से उनकी कमी को पूरा किया जाए जिनको कम माल दिया है, और उनकी आजमाइश कर ली जाए। यूं ही अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। यह आयत नंबर 35 है। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ जबकि वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। उसने कहा मैं नहीं समझता कि ये कभी भी बर्बाद होगा। बाग के मालिक ने इतराहट और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए अपनी समझ को सामने रखा कि ये कभी बर्बाद नहीं होगा। बाग का मालिक इतराया क्योंकि उसने बाग की अच्छे तरीके से देखभाल की। उसने उसकी इतनी बेहतरीन सूरत हाल देखी कि उसने महसूस किया कि ये कभी बर्बाद नहीं होगा। उसने तकब्बुर और सरकशी की ग़िज़ा तो ले ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। हालांकि उस मौके पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। इस तरह उसने जुल्म किया। यूं यहाँ जुल्म का लफ्ज़ नक्स और कमी के लिए लाया गया है। आयत नंबर 36 है। वमा ज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा। और मैं नहीं समझता कि क़यामत भी कायम होने वाली है, और यकीनन अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा भी दिया गया तो यकीनन मैं ज़रूर इससे बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। बाग के मालिक ने कहा आज मुझ पर इनाम है तो कल भी बेहिसाब इनाम पाऊंगा। वमा ज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा। और मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होने वाली है। खुदा फरामोश और मादा परस्त अफराद और अक़वाम का अंदाज़ फ़िक्र तकरीबन यही है। वो कहते हैं पहले तो वक़ूए क़यामत का इम्कान ही नहीं, ये महज अक़ली ख़ाबत है जिसमें मज़हब परस्त लोग मुब्तला हैं और खामखा इसकी फ़िक्र में सुबह शाम घुलते रहते। तो वो शख्स जो बाग रखता था अल्लाह ताला पर यकीन में कमज़ोर था, आखिरत पर ईमान नहीं रखता था, इसलिए उसने कहा मेरा ख़याल है क़यामत कभी आने वाली नहीं, यानी क़यामत का अक़ीदा ही गलत है। और अगर क़यामत आई भी वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा। और यकीनन अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा भी दिया गया तो यकीनन मैं ज़रूर इससे बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। मुतकब्बिर इंसान इम्तहान की हालत को इनाम की हालत समझता है, फिर वह इन इनामात को अपना हक समझता है, तो उसके दिल में यही बात बस जाती है आज इनाम है कल क्यों नहीं होगा। मैं तो वही हूँ, अगर आज अल्लाह ने मुझ पर इनाम किए कल भी बग़ैर हिसाब किताब के ये इनामात मुझे दे देगा। तो वो क़यामत का तज़किरा सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे माथे का सितारा चमकता रहेगा, यहाँ भी चमकता है वहाँ भी। वक्त की अर्जुमंदियाँ हमें हर तरह की सादतों और राहतों से बहरायाब कर देंगी। आयत नंबर 37 है। क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला
उसके साथी ने कहा जबकि वो बातें कर रहा था, क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुम्हें दुरुस्त आदमी बना दिया? यानी तुम उसके बारे में कहते हो वो मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा जिसने आपको दुरुस्त आदमी बनाया है। क़ाल लहू साहिबुहु वहुवा युहाविरुहु, उसके साथी ने जबकि वो बातें कर रहा था उससे कहा, ये नादार मोमिन है जो अपने काफिर साथी को नसीहत करते हुए इब्तिदाई हालात याद दिलाता है जिसमें अल्लाह ताला उसे वजूद में लाया। अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजूला, क्या तुम उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुम्हें दुरुस्त आदमी बना दिया? यानी आप अपने खालिक की नाफरमानी ना करना। उसने इंसान की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से की, फिर उसकी नस्ल की पैदाइश का आगाज़ हकीर पानी की बूंद से किया, जिसने आपको वजूद अता किया, नेमतें दी, मुकम्मल आदमी बनाया कि वो आपको मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा। आयत नंबर 38 है, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, लेकिन वही अल्लाह ताला मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी एक को शरीक नहीं करता। बाग वाले के मोमिन साथी ने कहा, मेरे पास अगरचे माल और औलाद कम है मगर हकीकी माल तो ईमान है। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, लेकिन वही अल्लाह ताला मेरा रब है। मोमिन ने काफिर साथी से कहा था कि मैं अल्लाह ताला की रुबूबियत का एतराफ़ करता हूँ, वही मेरा रब है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी एक को भी शरीक नहीं करता। मेरे पास अगरचे माल और औलाद तो कम है लेकिन हकीकी दौलत, हकीकी नेमत ईमान है, क्योंकि उसके सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। तो बंदा मोमिन ने याद दिलाया कि तुम शिर्क करते हो क्योंकि तुम अल्लाह ताला के इनामात में खुद को शरीक ठहराते हो। तुम अल्लाह ताला की बड़ाई की बजाय अपनी बड़ाई चाहते हो। आयत नंबर 39 है, वलौला इज़ दखलत जन्नतका कुल्त माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह क्यों नहीं कहा? अल्लाह ताला के सिवा कोई कुव्वत नहीं, अगर तूने मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर देखा है। मोमिन ने काफिर साथी से कहा, बाग में दाखिल होते वक्त तकब्बुर करने की बजाय माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? क्योंकि अल्लाह के सिवा तो किसी की कोई कुव्वत नहीं है। तुमने तकब्बुर क्यों किया? तकब्बुर की बजाय माशाअल्लाह कहते कि जिसे अल्लाह ताला चाहे बाकी रखे और जिसे चाहे फना कर दे। इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, अगर तूने मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर देखा है। यानी ईमान वाले अपने रब की ज़ात पर यकीन रखते हैं कि ठीक है, रिस्क में कमी है तो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझे तलब करना है तो मुझे तो अपने रब से उम्मीद बांधनी है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा अता कर देगा। यानी वो दौलतमंद से इम्प्रेस नहीं हुआ, उससे प्रेशराइज नहीं हुआ, दौलत के रोब को कबूल नहीं किया। माल की वजह से ईमान वाले कभी रोब कबूल नहीं करते। आयत नंबर 40 है, फ़ासा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमा देगा और उस पर आसमान से कोई आफत भेज दे तो वो चटियल मैदान होकर रह जाएगा। मोमिन ने अपने साथी को बाग पर आसमान से आने वाली आफत से डराया। यानी इस बाग ने तुझे धोखे में रखा था
तूने सरकशी का रवैया अख्तियार किया, उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे बेहतर अता करेगा, यानी तेरे बाग से ज़्यादा अच्छा बाग। मैं अपने फ़क्र फाका के बावजूद अपने रब की जूदो सखा से मायूस नहीं। मुझे यकीन है कि दुनिया और आखिरत की नेमतों से मुझे ऐसी नेमतें अता करेगा जिसका तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और ये शादाब बागात और लहलहाती हुई फसलें जिनकी वजह से तुम तकब्बुर कर रहे हो, ये सब फ़ानी है। गज़ब इलाही की एक बिजली इनका नामो निशान तक मिटा देगी। ऐसी फ़ानी और नापायदार चीज़ पर मगरूर होकर अपने रब्बे कदीर से रूगर्दानी कैसे कर लूँ, ये अक्लमंदी नहीं है। वयुरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, और उस पर भेज दे आसमान से कोई आफत तो वो चटियल मैदान होकर रह जाएगा। इस मौके पर मोमिन ने अपने साथी को बाग पर आसमान से आने वाली आफत से इसलिए डराया कि इंसान के ज़िंदगी में हादसात पेश आते रहते हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर इंसान का ज़ाती कब्जा हो। इसलिए मोमिन ने तवज्जो दिलाई कि ये सब कुछ जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा है ही कहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, हालांकि उसके माल में से उसका हिस्सा इतना है जितना उसने खाया, खा के ख़त्म कर दिया, पहनकर पुराना कर दिया और सदका किया और आगे भेज दिया। ये मुस्लिम की 7420 नंबर रिवायत है। यानी बचेगा तो वही जिसने सदका किया, उसने आखिरत के लिए बचा लिया। अल्लाह ताला ने दुआ करनी सिखाई है, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और मैं ऐसा नेक अमल करूं जिसे तू पसंद कर ले। यह है माल की हकीकत। माल में से जो सदका कर दें बचा लें, जो खाएं ख़त्म हो जाए, जो पहने पुराना हो जाए, और सदका बच जाता है। और इंसान जब शुक्र अदा करता है ना तो उसे सदका करने की तौफीक भी मिलती है। आयत नंबर 41 है, औ युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस्ततिया लहू तलबा, या उसका पानी गहरा हो जाए फिर तुम उसकी तलाश की कतअन इस्तेताअत न रखोगे। मोमिन ने अपने साथी को पानी की गहराई में उतर जाने से डराया कि तुम खुदाई के आलात के जरिए भी वहां नहीं जा सकोगे, यानी बाग के पानी का चश्मा, यानी पानी अगर इतनी गहराई में चला जाए कि तुम खुदाई के आलात के जरिए भी वहां नहीं जा सकोगे। आयत नंबर 42 है, वउहीत बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, और उसके फल को घेर लिया गया, चुनांचे वो उस पर अपने हाथ मलता रह गया। जो उसमें उसने खर्च किया था वो बाग अपनी छतों पर गिरा पड़ा था। वो कहने लगा, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न बनाया होता। अल्लाह ताला का फैसला आ गया, उसने बाग पर जो खराजात किए वो सब ज़ाया हो गए, तो अपने शिर्क पर पशेमान हुआ। वह उहीत बिसमरिही, अल्लाह का फैसला आ गया, उसके फल को घेर लिया गया। इससे अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया है कि दुनिया में जो बाग तुमने उगाया तुम्हारा ज़ाती नहीं, लेकिन तुम उस पर अपनी मिल्कियत समझकर शिर्क करते हो। फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, चुनांचे वो उस पर अपने हाथ मलता रह गया जो उसने उसमें खर्च किया था, और वो बाग अपनी छतों पर गिरा पड़ा था। यानी उसने बाग पर जो अखराजात किए थे वो सब ज़ाया हो गए। उसने अफसोस करते हुए अपने शिर्क पर पशेमान होते हुए कहा, वयक़ूलु या लैतनी लम मुशरिक बिरब्बी अहदा, और वो कहने लगा, ए काश मैंने अपने रब के साथ
किसी को शरीक न बनाया होता। जहानों के बादशाह ने हाथ मलते हुए इंसान के मंजर को सामने रखकर समझाया है कि तुम्हें भी शिर्क की नफी करनी है। देख लो, किसी के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही हर चीज का मालिक है। क्या तुम्हें भी उसी दिन याद आएगा जब कुछ भी तुम्हारे हाथ में ना रहेगा? इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी पर, अपनी कुव्वतों पर, अपने माल पर हाथ मलते रह जाओ, इससे पहले आज के दिन अपने रब की कुदरतों का एतराफ कर लो। आयत नंबर 43 है, वलम तकुल्लहु फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा काना मुंतसिरा, और उसके पास कोई जत्था न था जो अल्लाह ताला के सिवा उसकी मदद करता, और न ही वो खुद बचने वाला हुआ। जब बाग पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। हर चीज हाथों से निकल गई है। इंसान की जिंदगी में आने वाले हादसात यकीन दहानी करवाते हैं कि काबिलियत और तदबीर अल्लाह ताला के आगे काम नहीं आ सकती। अल्लाह ताला वाहिद है, कादिर मुतलिक है, कुव्वतों का मालिक है, उसके सिवा कोई मददगार नहीं है। आयत नंबर 44 है, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक हुवा खैरुन सवाबम व खैरुन उक़बा। वहाँ हर तरह की मदद अल्लाह ताला ही की है। जो बरहक है वही बेहतरीन है, सवाब देने वाला और बेहतरीन अंजाम वाला है। तो अल्लाह ताला का इख्तियार ही बरहक है, उसी का इनाम बेहतर और उसी का दिया हुआ बदला अच्छा है। वहाँ हर तरह की मदद अल्लाह ताला ही की है, बरहक है, वही बेहतरीन है, सवाब देने वाला, बेहतरीन अंजाम वाला है। वो शख्स पुकार रहा था कि अल्लाह ताला का इख्तियार ही बरहक है, उसी का इनाम बेहतर, उसी का दिया हुआ बदला अच्छा है। काश हम भी ये समझने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी हकीकी समझ नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।